right, guys. So welcome all. We are going to start our session. So I'm Saurabh Bansal, and I will be your mentor in this internship program, where we are going to have a detailed discussion on what is machine learning, artificial intelligence, and at the same time, we are going to learn the different concepts of machine learning, and then finally we are going to develop a project which is going to be used as an internship project for you all guys for your project works and assignments, right? So this is a joint program with Axiom Cloud Solution in coordination with Bignalytics IT Solution, right? So guys, I hope you all are comfortable with English, but to make it more interactive, let's start with our native language as well. So I will be using a mix of language, which will be some part of it will be English, and then some part I will be talking about Hindi as well, right? So हम इसको interactive रखेंगे, and for that I will be talking a mixed language. And इस internship program में how we are going to go, that is something I will lay down, right? और उसी के साथ साथ हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी। ये पूरा प्रोग्राम एक कंप्लीट मंथ का होगा, एंड इन दैट देयर आर सम ग्राउंड रूल्स। कुछ ग्राउंड रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे। सो दीज ऑल ग्राउंड रूल्स आर समथिंग विच वुड हैव बीन सेंट यू ओवर द व्हाट्सएप, राइट? तो व्हाट्सएप पे आप लोगों को कुछ लिस्ट मिला होगा अलग अलग रूल्स का, विच थिंग्स और विच ऑल रूल्स दैट यू गाइज हैव टू फॉलो, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, let me introduce me once again. So I'm Saurabh Bansal, and I'm a lead data scientist in an organization in an MNC. और इस MNC में I work as a senior technical manager and lead data scientist, and I lead a team of approximately 10 data scientists. Along with that, I have around 5 to 6 testers working with me, and I'm owning a front-end team as well, which is consisting of around 5 to 6 members. So overall, in all of, if we want to say, so I have around 20 plus members team to manage, right? So I completely own a delivery of a project and a product, which is completely machine learning based, right? So that is about my current work. And prior to that, I was working with a bank and NBFC. So bank or NBFC means a company which lends money or loan to different organizations and individuals, right? तो वहाँ पे मैं as a assistant vice president work करता था, and that was again a role of lead data scientist. And then prior to that, I was working with another MNC, which is having more than 2+ lakh of employees in it, one of the biggest MNC of India, right? And वहाँ पे मैं as a principal technical architect and machine learning expert, as a machine learning expert, I was working into. Just excuse me, I'm a little more comfortable with English while doing the presentation, but at the same time, to keep it mixed language, I will try to make it in Hindi as well, as and when it is required, right? So that is about me. So overall, I have around 15 plus years of IT experience, right? And in पिछले 15 सालों में I have worked on different roles, including hardcore developer. I started with a backend developer, और backend development के साथ I was working with the API integration part and front-end development part. So it was a kind of full stack development that I had done in the past. Then I moved up in the ladders and worked on different projects of different companies, which involves some of the banking company, मतलब finance companies, banking companies, telecom companies. Then I worked for PBM domain, जो कि एक अलग ही niche domain होता है. It's like an insurance sector, but not completely insurance. That's really a different sector and interesting one. So I worked with that organization as well, and in the domain. I have been into different locations of India and across the globe. So during my career, I mean मेरे पूरे career में, I've been into different locations, right? इसमें इंडिया की बहुत सी locations है, plus साथ में onshore की भी बहुत सी locations है.
स्पेशली यूके में आई हैव सर्व्ड मोर देन 4+ years. सो अराउंड 4 से 5 साल मैं यूके में रहा हूँ, स्पेशली इन लंदन, एंड एट द सेम टाइम आई हैव बीन टू वॉरिंगटन यूके. वॉरिंगटन एक और दूसरी जगह है. देन मैनचेस्टर, अभी आप सब लोगों ने नाम सुना होगा मैनचेस्टर का. दैट इज काइंड ऑफ फुटबॉल क्लब वी हैव, मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ यू वुड हैव सीन, राइट. सो वहाँ पे भी काफ़ी समय तक वर्क किया है मैंने, एंड देन मेनी अदर लोकेशंस एज वेल, राइट. सो आई हैव फेयर बिट ऑफ एक्सपीरियंस एज फार एज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग इज कंसर्न. देन बहुत समय मैंने आई मीन ऑनशोर पे क्लाइंट लोकेशन पे बिताया है, एंड विथ क्लाइंट लोकेशन आई हैव फेयर एक्सपोजर टू द वर्क nature or work way, the way client work and the actual pressure that we have in the software development. वो भी मुझे काफ़ी अच्छे से पता है किस तरह से we deal with all these things, right? So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब मैंने अपने पास में की है, and especially with a long career in IT, I hope I will be able to kind of help you guys with your internship process, where we will try to help you guys to develop at least one project on machine learning and artificial intelligence. Or wahi project you can kind of have it as your internship project at the same time. If you work along with me for longer time, or try to understand what I am kind of explaining and trying to get the things out of you, so we can use these projects as your final submission projects as well, if you wish to work it further, right? So यहाँ पे क्या हम लोग करने की कोशिश करेंगे guys, कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस पूरी एक्टिविटी में we will be having approximately 4 weeks time, जो कि एक बहुत छोटा समय होता है. It's a very short period of time for a complete internship program and at the same time project development things. Because आप लोगों को पता होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने के लिए या कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, तो फॉर अ कंप्लीट टीम, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, बट फॉर अ कंप्लीट टीम it takes longer time, very long time. It is approximately 2 to 3 months for a very small scale project, right? For a complete team. So 1 month is a very short period of time, और बहुत छोटा टाइम है. And at the same time, I hope many of you, I mean, I think many of you would not be very much aware of or very much familiar of artificial intelligence and machine learning. So what we are going to do in this entire program is going to help you with some of the prelim learning or basic learning of Python and machine learning and artificial intelligence. तो हम parallelly थोड़ा learning भी करेंगे, so that you can get to the pace of the project. आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, और समझने के बाद एग्जीक्यूट कर पाएं. एग्जीक्यूट करके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करना है. इफ यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सबमिट इट इन टाइम, so we are going to issue internship certificate to you guys. And at the same time, similar project को, उसी प्रोजेक्ट को आप थोड़ा और वर्क करते हैं, थोड़ा और रिफाइन करते हैं, तो you can take it as a your final project as well, right? So बहुत बेसिक सा डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है. Now one thing I would like to help you with, or would like to let you know, that during the explanation, जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो there will be many questions, there may be many doubts in mind. So don't shy. We will be having though little wider audience, but at the same time, don't shy. I will, if you have any question, either you can raise your hand, or you can chat it in the chat box, or you can unmute your mic. So आप अपना mic unmute कीजिए, and then you can ask your questions as well in parallel to what we are discussing, right? So what we are going to do here is going to have a quick introduction round. Can one of you unmute and quickly introduce yourself, just the name and the college, and at the same time the inclination or the understanding of artificial intelligence and machine learning, और साथ ही साथ what is your inclination to join this internship program, right? So would that be fine for a quick introduction, right? So we'll start with Shayantan Banerjee. Would you be able to unmute? Yeah, please go on. Good evening, sir. This is Shantan Banerjee from Medicaps University. Sir, my purpose is to learn about artificial intelligence and machine learning.
because it is totally a new thing for me, and I want to learn more about this. Very good, Shayantan. So welcome to the program. So इस program में we are going to try to understand a few concepts of machine learning and then try to scale it up in terms of project so that it is going to help you with your regular projects that you used to do and internship program. All right, Shayantan. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Rohit Kumar Lavanshi. Rohit, would you like to introduce yourself? Quickly, guys, we have little less time. Rohit, are you there? Okay, seems Rohit is offline. Suraj, would you like to introduce yourself? My name is Suraj Joshi. Yeah, hi Suraj. And I study in Medicaps University. Well, my purpose of this joining the internship is to learn more about machine learning and data science. Actually, I'm learning it by myself. I have learned linear regression, logistic, and decision tree from scratch, and I've coded all these algorithms. But I want to learn more on this. So I thought of taking internship. That's all. Thank you. Great, Suraj. So that will be wonderful. That knowledge that you have about machine learning, artificial intelligence, or maybe the linear logistic regression that as you told. So it will be very handy while working on the projects, right? So welcome you. Another one is Ankit Kumar Shukla. Would you like to introduce yourself? A very good evening, sir. This is Ankit Kumar Shukla from Medicaps University. Sir, I'm totally new to this learning, but I will love to learn this machine language. Great, great, Ankit, and welcome to the course. Right. All right, Arpit Gupta. Arpit, are you on? Okay. Astha Pariyar. Good evening, sir. I'm Astha Singh Pariyar and I'm from Prestige Indore. Yeah. So actually, my motive to join this internship is like I want to have my future in IT sector. So I guess this opportunity will be a good for me and for my future. Great. Yeah, Astha. So that's wonderful, and hope we will be able to help you to transition into any IT role. Of course, it will be a prelim program, so it needs a lot of parallel work with you. But hope with this program we will be able to help you at least to imbibe some of the machine learning and artificial intelligence concepts, which are going to be helpful for you in maybe longer term, or may invite some of the interest in this field so that you can easily transition, right? All right. Of course, sir. Thank you. Ajay Vishwakarma. Very good evening, sir. This is Ajay Vishwakarma from Prestige Indore. Okay. Yes, sir. This is new for me, but I want to learn machine learning. Great. So, all right, Ajay. So welcome. Thank you, sir. Next Akshat Mishra. Akshat. All right. Seems Akshat is not available. Amala Sebastian. Yes, sir. Good evening, sir. Hi. I'm new to this thing, but I heard it from many of my friends that machine learning and artificial intelligence is a growing field. So I just want to explore it more. So that's the reason why I opted for this internship. Great. So welcome to the program. Thank you so much, sir. Thank you. Aniket Jha. Good evening, sir. I'm Aniket Jha and I'm from Medicaps University. And my purpose for this internship, for joining this internship, is that I want to learn something new, and I want to make my career in IT sector also. So that's why it will be beneficial for me. Great. So guys, in this entire program, we will be having a lot of learning. At the same time, we expect some sort of work with you guys as well, at least 1 to 2 hours on a daily basis, so that you can attend the initial sessions that we are going to have on the learning part. So we will be starting with the Python programming, the learnings and the basics of Python programming. और उसके साथ ही साथ then
Then the second week onward, we are going to start with some of the different concepts of machine learning and statistics. And then parallelly आप लोग उसके अंदर project development कर सकते हैं. So parallelly आप लोग project develop करते रहेंगे और हम लोग concepts पढ़ते रहेंगे. So this is how we are going to work upon. All right. So I will explain you कैसे हम लोग काम करने वाले हैं इसमें and how it is going to be beneficial for you in both the direction. One is for the learning perspective. Another one is, of course, internship will be an added advantage along with it. All right. So let's go with Arslan Sheikh. Arslan Sheikh. Okay, seems he's not available. Ashwini Rawat. Good evening, sir. Hi. I am Ashwini Rawat from Prestige College, and my purpose to join this internship is to learn machine learning and data science and make a project. Great. All right, so welcome. And Sir. okay, Chirag Devlani. Why guys, why we are... Hi, sorry Chirag for interrupting you, but just want to let you guys know why we are having this introduction round, because ये जो project development का process we are going to have, so इसमें हम लोग क्या करेंगे कि as you know that projects are something which goes in groups. तो group learning के लिए और interactive discussion के लिए what we are going to do is we are going to create small groups amongst you guys so that कि एक group में आप लोग आपस में connect होने के बाद project development कर पाए, right? So that's why this interaction and understanding of each other is also very important, right? So इसलिए हम लोग ये discussion भी रख रहे हैं. Yeah. All right. Sorry Chirag. Yeah, go on please. Hello. Good evening, sir. Sir, I'm Chirag Devlani from Medicaps University. Sir, actually, I don't have any prior knowledge of machine learning and artificial intelligence, but I'm interested in learning it, and I will try my best. Right. Which branch you are from, Chirag? Sir, BTech Computer Science. Computer Science. Yeah, guys. So along with the name, please call out your branch as well, the major. If you are from MBA, if you are from CS or whatever you are from mechanical or any kind of branch that you are having. That will be able to help me to understand the audience as well. जिससे मुझे पता चलेगा कि I mean what variety we are having. Okay. So next one is Dimple Sinha. Please help, Dimple. Good evening, sir. My name is Dimple Sinha. I'm in Medicaps University. My branch is BTech Computer Science, and I have just completed my second year. And machine learning and artificial intelligence is something new that I wanted to learn, so I joined this internship. Great. So welcome, Dimple. Thank now you, next, thank you. Next one is Deepesh Godra. Good evening, sir. Good evening. I'm Deepesh Godra from Prestige College, and I'm pursuing my BTech in Electronics and Telecommunication. So I'm totally new about machine learning and artificial intelligence, but my cousin is also a lead data scientist in Japan, and she told me about this course. And this is a highly paid, honestly highly paid and trending job nowadays. Very so nice, very nice. I want to learn this. So glad to know that you guys are aware of the future in artificial intelligence. और ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए being in Indore, which is a tier 2 city. तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जो advanced developments होते हैं, though it's a internet connected world, but sometimes कुछ students और being in a tier 2 city, sometimes जो new development रहते हैं उससे थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं. अगर ये सही इसी तरह के जो सेशंस में अलग अलग लोकेशंस पे कंडक्ट करता हूँ, बी इट बेंगलोर, बी इट हैदराबाद, बी इट पुणे, बी इट मुंबई, और मे बी आई हैव some candidates who are learning from me. They are from onshore as well. Onshore means I have students from US, UK, and I had complete batch with Nigerian students as well. Some of the students I have handled from Gulf countries as well. So वहाँ पे लोग काफी अवेयर हैं इन सब चीजों को लेके. Tier 2 city like Indore, or maybe some more I would say geographical location which are not technically so advanced at the moment. तो उसमें इस तरह की चीजें जो आप लोगों से मुझे सुनने को मिल रही है, I am very happy कि still you are aware of what is going on in the world and you are up for it, right?
थोड़ा सा हम लोग अभी फिलहाल स्टिल थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ आई वुड से अवेयरनेस इन tier 1 cities about these all technologies, but यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा एक mindset लोगों के दिमाग में बना है कि Java is something we should learn. Whenever we try to learn something in computer science, so people try to learn Java or web development, या उसी चीज में अभी हम लोग लगे हैं, which is a good, I would not say that's not something, but still there are a lot of new things coming up. बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. अभी तक हम लोग सिर्फ यही समझते कि डेटाबेस मतलब MySQL होता है या SQL होता है, बट डेटाबेस सिर्फ SQL और MySQL तक लिमिटेड नहीं है. अभी हमारे पास NoSQL, MongoDB, Cassandra और भी बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हो गए हैं, एंड दे आर समथिंग विच आर रियली वाइडली यूज्ड. तो वैसी चीजों के बारे में जब मैं सुनता हूँ कि आप लोगों को पता है, सो इट गिव्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड फीलिंग. सो दैट्स नाइस. ऑलराइट, सो ध्रुव श्रीवास्तव. Hello. Hi, Dhruv. Hello. Yeah, hi. We can hear you, Dhruv. Yes. Sir, I am Dhruv Srivastav from Prestige Institute of Engineering, and I'm pursuing my BTech from Electronics and Communication. And I'm attending this internship because I have so much interest in machine learning and data science. Great. Thank you, sir. Thank you. So great to hear you, Dhruv, and welcome. Next one is Aryan. Hello. Yeah, hi Aryan. Good evening, sir. So my name is Aryan, and I am from Medicaps University Indore, and I am in civil branch. And it's great to learn new things. So here I am. Great. So welcome, Aryan. Thank you. Then Eklavya. Eklavya, seems there is a heavy background noise from your end. Okay, so sorry, Eklavya. Okay, sorry, Eklavya, you need to sort out your network connection. There is a kind of big background noise. So we'll move on to next person, which is Shubhadeep Sheen. Yes, sir. Sir, I am from Medicaps University. I have just completed my second year, and machine learning and artificial intelligence is something that is really booming in this period of time. Great. I want to learn it. Thank you, Shubhadeep. Who else left? Anjali Jaiswal. Good evening, sir. Good evening. My name is Anjali Jaiswal. I am from Medicaps University. Currently, I am pursuing BTech from Information and Technology. I have joined this internship because I want to explore more in data science and machine learning, and also I want to make a future. Great. So welcome to the course. Priyanshu Gupta. Thank you, sir. Yeah, hi. Hello, sir. My name is Priyanshu Gupta. Hi, Priyanshu. I am studying right now in Medicaps University and pursuing BTech in computer science. And I want to enroll in this course, sir, because sir, data science is growing in today's world, and I want to make a future in this field only. That is good. So hope we may help you to transition in the role, and you will take out some learning from this discussion that we are going to have. Okay. So, yeah, sure. Next one, Mohit Kumar Wadhwani. Hello. Yeah, hi Mohit. Yeah, hi, sir. Good evening, sir. As I'm Mohit Wadhwani, sir, from Medicaps University, and my branch is BTech CSE. And sir, I want to know more about AI and machine learning, sir. That's why I've joined this program, sir, so I can learn new things about this. Great. So welcome. Next one is Prakhar Chaurasia. Good evening, sir. So I am Prakhar Chaurasia from Medicaps University,
and my purpose is just to learn about artificial intelligence, learning, and data science. And as I am CSE student, so this internship absolutely gonna to help me in future. Definitely, yes. Okay, so welcome. Next one is Gaurav Singh Seni. Yeah, good evening, sir. I am Gaurav Singh Seni. I am currently pursuing my computer science engineering from Medicaps University. And I have a basic idea of few terms of AI, and I further aspire to work in the field of AI and ML and hopefully make a project in this internship. Great, great. So welcome. And Thank you, glad sir. to know that you already know a few things. So that will be helpful for you in the project. All right. Okay. Harshin Narang. Hello, sir. This is Harsheen Narang. I'm pursuing BTech from Medicaps University in Computer Science. I want to learn this because, like, so many major leading apps like Google Assistant and like Snapchat, everything uses AI these days. So, yeah. Great, great. So welcome, Harshin. Hiryang, sorry, I can't read your name properly. I can't pronounce your name. In fact, if you can. Here, sir. Yeah, that's nice. Very nice name, sorry. Yeah, sorry. It was a little tough to call out, but yeah, please introduce yourself. Sir, I am Hiranyakshi Shirsagar and I am pursuing my BTech CSE from Medicaps University, and I have just completed my first year and I am exploring various fields in computer science. So I've started with ML and AI. Great, great. So welcome, Hiranyakshi. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ishika. Good evening, one and all. I am Ishika Bangar from Prestige Institute of Engineering and Management. I am pursuing my BTech degree, Computer Science and Engineering. I want to make my future in AI and machine learning. That's why I'm here to get some knowledge. Great, great. Neha Pushpa. Yes, sir. Good evening, sir. My name is Neha Pushpa and I am from Medicaps University. I am pursuing BTech from Computer Science. And I wanted to start learning AI and machine learning because there is a great future in this field, as we know. And then I heard about this program, and it also contained learning with project. So somewhere it is a great. I thought it is a great platform from where I can start in this field. So I think this is going to be a great journey with you and with other. Great, great. Thank you. Thank you. Nirma Khan. Yeah, sir. Good evening, sir. I'm Nidra Khan from Medicaps University. I'm pursuing BTech in Information Technology with specialization in data engineering. And my motive to join this internship is to implement some machine learning concepts. And I have some basic knowledge in supervised and unsupervised learning and data science using Python. So. Great, great. Next one is Nishant. Nishant. Yes, sir. Yeah, hi, Nishant. If you can introduce yourself. Sir, I am with you. I am as an instructor. I am Sorry. joined this course. Sorry, Nishant. I just miss you. So, guys, okay, sorry. We will go on. Prachi. Yeah, good evening, sir. My name is Prachi Gangwani. I'm pursuing my bachelor's degree in computer science at Prestige Indore, and my motive to join this, to opted this internship is I want to have my future in IT sector. So I think this internship will be a great opportunity. Great, great. Thank you and welcome. Pratham Jain. Yeah, good evening, sir. Myself, Pratham Jain from Medicaps University. Currently, I am pursuing my BTech degree in CS with specialization in AI. So my basic motive is to, as far as I know, the future is mostly based on these things like machine learning and AI. So I want to explore these things much more. That's why I joined this internship. Great, great. So welcome and thank you, sir. Thank you. Next one is Ravi Verma.
Ravi Verma, are you there? Okay. Rupali Nimbalkar. Good evening, sir. My name is Rupali Nimbalkar. I am pursuing my BTech in Computer Science from Prestige Institute. My motto to join this program is to learn artificial intelligence and machine learning because it's having a great and a lot of career opportunities. Yes, thank you, sir. Definitely yes, and welcome. Next one is Shubham Jain. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Shubham. Sir, I am Shubham from Medicaps University. Sir, currently I am pursuing my BTech degree in CS. Sir, I don't have much knowledge about AI and machine learning. Sir, from this course, I guess I will make a strong base with the help of you. So yeah, that's what the motive of joining this internship. All right. So thank you and welcome to the course, and hope I will be able to help you with your expectations. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Sneha. Hello, sir. I'm Sneha Vishwakarma from Prestige Institute of Engineering Management and Research. My specialization is computer science, and my motive is like I am very interested in machine learning. I did many projects like basics projects, but I want to learn the deep of machine learning. Like projects only tell us the command and the working which we see in the front, but I want to learn the back end of that also. I did not get you. You created project where you see commands in front, but Like sir, if we talk about logistic regression or linear regression, so we basically apply the logistic regression and linear regression from sklearn and put the fit function and then predict the values. So I just want to learn the working of that. Okay, कैसे पीछे कैसे काम करता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, वो जानना चाहते हैं आप इसमें? राइट, तो आपने अभी तक सिर्फ ये क्या होगा कि पाइथन में sklearn को इंपोर्ट करके उससे लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करके देखा होगा. दैट इज व्हाट यू डिड? यस सर. ओके, बट उसके पीछे क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह से वो काम करता है, उसका कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ये सब चीजें आपको पता है? नहीं एक्चुअली सर, आई लर्न समथिंग बट आई डोंट नो द मोर अबाउट इट. ठीक है, वेरी गुड. So we are going to have some understanding on that part as well. Of course, हमारे पास इतना डिटेल में जाने का टाइम तो नहीं होगा, but I will try to pick up a few topic and as we are targeting a specific project, तो अपना यहाँ पे aim एक project complete करने का है, तो उसके लिए हम लोग एक टॉपिक पिकअप करेंगे, उसको ट्राई करेंगे लर्न करने का एंड टू एंड, और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. राइट, उसमें कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर पाएंगे, कुछ टॉपिक शायद कवर ना कर पाए, बट जितना भी हम कवर करेंगे आई विल ट्राई टू एंश्योर कि आप लोगों को वो समझ में आए एंड देन इट बेनिफिट्स यू एटलीस्ट टू गिव एटलीस्ट अ स्टार्ट सो दैट you can take it ahead and learn further with your interest. Right? Yes sir. Okay, Yash Kumar. Yes sir. Good evening sir. My name is Yash Kumar and I pursuing BTech CSE from PIMR Indore. And my purpose for joining this internship is to know more about AI and machine learning. Great, Yash, and welcome. Next one is Yash Mulchandani. Good evening, sir. I'm Yash Mulchandani from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. I'm currently pursuing BTech in Information Technology, and my purpose to join this course is as it is a very vast and growing technology nowadays. That's why I'm interested in this course. Welcome Yash, and I must compliment you. Your voice is very nice. So welcome. Thank you, sir. Welcome. Amber, I think you recently joined in. So if you want to introduce yourself. Yes, good evening sir. My name is Amber Dubey. I am pursuing my BTech from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. I joined this because I also know some basic terminologies like supervised learning and supervised learning. So I want to explore more about it. Let's see. Great. So guys, this is all about our introduction session where we had introduced with each other, and would like to introduce you all guys with Bignalytics team and Axiom Solution team, which are going to go in tandem to help you with this internship program. So as I introduce myself, like what I did in the past and how I am doing it,
I would like to introduce my colleague, Mr. Ranjan Pradhan. So he is he is also a businessman, and he owns different IT companies. He have been founder of different IT companies as well. And at the same time, he has a deep interest in training and placements. He has wide experience of more than 21 years in the field of training and placements, have placed more than 500 plus peoples in the IT industry with different packages and in different MNCs, including Deloitte Solutions, TCS, Infosys, Wipro, HSBC, and so on and so forth. So you name the organization, and he has worked with the organization, and his students are in the organization. Right. So welcome, Mr. Pradhan. And then I will be having my colleague, Mr. Nishant. So he will be helping you with the basic understanding of Python, and going to help you to understand the basics of Python at the same time, because Python is going to be the building block. And then at the same time, I'm going to take it ahead in the artificial intelligence and machine learning area. But before we move on, I would like to hear from Mr. Pradhan. Ranjan sir, if you would like to, yeah. Good evening, friends. I am Ranjan Pradhan, as Saurabh has introduced you already. Basically, I was previously working with IBM on mainframe technology and AS400 technology. You must have heard about this technology. Now, this is the legacy technologies. Now, I am currently working as a consultant on the Salesforce. That is one of the prime cloud computing development environment. Once we have discussed this all this internship program with Suresh Jain sir, then we have find out. I have discussed this matter with Mr. Saurabh Bansal, who is my friend. He is currently working with one of the IT company as a vice president in artificial intelligence and machine learning. So we have planned to provide a platform to the Indore-based student, so they will get a proper knowledge or proper delivery of the technology, and how to properly develop the project. But main requirement is that you all are requested to attend the session very regularly, ask your doubts openly without any fear, and whenever you have any problems, post that problems in your group. Right now, I'm requesting Saurabh to hand over the session to Nishant. Yeah. So sure, sir. Thank you. I will be handing over the session. But before we move on, just would like to quickly walk the audience around through the scope of artificial intelligence and machine learning, so that they can put even more energy to the learning and what we are going to deliver to them. Right. So before we move on, Ankit, do you have any question? You have raised the hand. Ankit Jaiswal. Yes, sir. Yeah, go on. सर मेरा नाम अंकित जायसवाल है सर. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर. मैं CSIRT से हूँ सर, मेडिकैप्स कॉलेज से सर. और मुझे प्लेस में डाटा साइंस में होना है सर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो सर मुझे जैसे मशीन लर्निंग भी नहीं आती है ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है मशीन लर्निंग का. तो मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए जो सर मेरा डाटा साइंस में प्लेस हो जाए सर? बहुत बढ़िया अंकित. सो कोई टेंशन नहीं है अगर आपको डेटा साइंस नहीं आता, अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आता है, बिकॉज दिस इज जहाँ पे आपको सीखना है. यस सर. लेट्स स्टार्ट विद अंकित्स क्वेश्चन. और यही क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में भी होगा कि कैसे हम लोग इस फील्ड में ट्रांजिशन कर सकते हैं. यस सर. यस सर. सो सिंपल आंसर है कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, AWS, Azure, DevOps, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज. हाउ दे वर्क एंड क्या उसमें करना चाहिए. So I would say कि डेटा साइंस में अगर आपको वर्क करना है, so the basic starting point will be Python programming. So Python याद है सर मुझे. हाँ, so नहीं, हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे अगर नहीं आती है तो. और okay, उसके बाद फिर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पहला आपका Python का सेशन होंगे, उसमें आप Python लर्न करेंगे. मिस्टर निशांत इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट. एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग एल्गोरिदम्स या मशीन लर्निंग की अलग अलग टेक्निक्स पकड़ के उनको सीखने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे. राइट. तो ये हमारे पास एक पाथवे होने वाला है. उसमें हम लोग टोटल ये 4 वीक का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें पहला पूरा वीक हम लोग फोकस करेंगे पाइथन सीखने की. राइट. तो उसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन आप लोगों को बताया जाएगा, और उस बेसिक्स ऑफ पाइथन के साथ में एक
मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जब वो आप सीखते हैं तो आपको थोड़ा पाइथन का पता चल जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कैसे ये वर्क करता है, कैसे आप लोग काम कर सकते हैं उसमें। अंकित, यू कैन गो ऑन म्यूट, यू आस्क योर क्वेश्चन। ओके सर। सो उसमें हम लोग आपको पाइथन सिखाएंगे। देन फ्रॉम वीक 2 ऑनवर्ड हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पिक अप डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स, राइट। तो उसके अंदर वन बाय वन आई वुड पिक अप 2 to 3 डिफरेंट टेक्निक्स एंड गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्क करता है। पैरेलली मिस्टर निशांत आप लोगों के साथ अवेलेबल रहेंगे फॉर एनी फॉलो अप डाउट्स ऑन योर पाइथन प्रोग्रामिंग। एट द सेम टाइम आपका प्रोजेक्ट भी खुलेगा सेकेंड वीक से, तो सेकेंड वीक से आप लोग थोड़ा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे मिस्टर निशांत और मैं आपको हेल्प करेंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। एट द सेम टाइम टॉपिक डिलीवरीज में आपको करता रहूँगा, जो आपको सिखाता रहूँगा अलग अलग जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले कंसेप्ट हैं। एंड देन फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन और सबमिशन होगा। जब आप प्रेजेंटेशन और सबमिशन कर देंगे प्रोजेक्ट का, देन यू विल बी इशूड विद एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्सियम क्लाउड टेक सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसा होने वाला है। डोंट वरी, throughout the journey I will be with you to solve your questions and help you guys कि कैसे ये सब चीजें होती हैं, right? So it's too early, but थोड़ा मेरा साथ दीजिए। You will get to know each and everything and you will have a good clarity of what to do and how to do, right? Okay, so just will need Deepesh Godra. Do you have any question? Okay, thank you. So okay, so let's move on without spending a lot of time now. So make quickly आप लोगों को as I discussed with you all guys, most of you are already aware of, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सी चीजें पता है कि कैसे ये सब चीजें वर्क करती हैं, बट स्टिल क्विकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को वॉक थ्रू करवाना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होता है। वो हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, बट एट द सेम टाइम पहले ये समझते हैं कि क्यों इतना इसका बज़ है। इतना नाम आप सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, तो क्यों इतना सुन रहे हैं, क्या उसका रीजन है और क्यों इतने वेरिएशंस और क्यों इतना रिवोल्यूशन वो इंडस्ट्री में ला चुका है, राइट। सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे, जब ये आप गो थ्रू करेंगे, तो आपको समझेगा कि क्यों ये पढ़ना चाहिए, क्यों इसको लेके ज्यादा सीरियस होना चाहिए। और अभी आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स 3rd ईयर में हैं, कुछ स्टूडेंट्स 4th ईयर में हैं, कुछ अपना प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट कर रहे होंगे। सो स्टिल यू आर वेरी न्यू, बट जब आप कॉलेज से ट्रांजिशन करते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे आपको एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होगा, इफ आफ्टर मेडिकैप्स और एनी अदर कॉलेज दैट यू आर इन द फाइनल सेम, वहां से आपको प्लेसमेंट भी मिल गया, तो प्लेसमेंट मिलने के बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो जाने के बाद पहले 6 महीने वो जो MNC या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको ट्रेनिंग देता है। नाउ मोस्टली जो ट्रेनिंग होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की, जब वो ट्रेनिंग आपको देते हैं या किस फील्ड में आपको डालते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता है। यू डोंट हैव एनी चॉइस टू सिलेक्ट एनीथिंग, राइट। जो भी रहता है वो आपको लर्निंग प्रोग्राम में डालते हैं। वो लर्निंग प्रोग्राम 3 से 6 महीने तक चलता है। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट में जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे आपको अलोकेट कर दिया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट बेस लाइनेक्स का भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट सपोर्ट का भी हो सकता है, वो सपोर्ट डेवलपमेंट वर्क भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट जावा का भी हो सकता है, वो सेल्सफोर्स भी हो सकता है, वो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। बट वो सारा जो भी होगा वो बाय चांस होगा। मतलब जो भी होने वाला है उसके लिए आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे किसके ऊपर, तो कंपनी के ऊपर, कि कंपनी आपको क्या करेगी। बट ये अगर टेक्नोलॉजीज आप लोग पहले से सीखते हैं, सो यू विल बी हैविंग समथिंग इन माइंड, समथिंग इन हैंड, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर मे बी 4th ईयर और सो, अगर आप लोगों को बाहर ओपन मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो यू आर गोइंग टू बी अ चूजर वेयर यू कैन चूज कि आपको किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। तो अगर आपने कुछ नया चीजें नहीं करी है, ये सब चीजें नहीं सीखी है, तो जैसे ही आप कॉलेज से निकलेंगे, सीधे आप लोगों को कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में डालना चाहेगी उसमें डालेगी, एंड देन यू विल बी बाउंड। क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली कंपनी में कि 2 साल तक आप छोड़ नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ बॉन्ड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो पहले 2 साल आप उसी चीज में चले जाएंगे जो भी टेक्नोलॉजी आपको मिली है, एंड देन 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप कंपनी चेंज भी करते हैं, तो आपको उसी टेक्नोलॉजी में नया जॉब मिलेगा। सो सपोज यू स्टार्ट विथ लाइनेक्स या यूनिक्स टेक्नोलॉजी, तो जब आप स्विच करेंगे तो भी आपको नया जॉब भी यूनिक्स में ही मिलेगा। और ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस लूज नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे, तो यूनिक्स में मिलेगा। तो फिर नई कंपनी में आप
ज्वाइन करने के बाद फिर से यूनिक्स पढ़ेंगे, यूनिक्स पढ़ने के बाद फिर वहाँ पे 2-3 साल निकालेंगे, फिर स्विच मारेंगे तो फिर यूनिक्स में जाएंगे। मतलब ओवरऑल ये कहना होता है कि जहाँ पे आपको कंपनी ने ज्वाइन करते से ही जिस टेक्नोलॉजी में डाला, मोर और लेस 95% पीपल उसी टेक्नोलॉजी में थ्रू आउट द करियर रहते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है किसी नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, तो फिर उसके लिए आपको एडिशनल बहुत से एफर्ट डालने पड़ते हैं, विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ लर्निंग। एट द सेम टाइम आपको अपना पुराना एक्सपीरियंस भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, करंट सैलरी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि आप अपना करियर स्विच कर पाएंगे। सो फॉर मी द बेस्ट चॉइस और बेस्ट ऑप्शन विल बी टू ट्रांजिशन इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर यू शुड मेक अ वे टू डू इट एट द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को AI ML और डेटा साइंस के लोगों की जरूरत होती है। तो अगर आपको पहले से इसका नॉलेज है एंड स्टिल यू आर प्लेस्ड वाया कॉलेज हैविंग दिस स्किल सेट, तो उस कंपनी में जाके भी आप बता सकते हैं कि यू नो पाइथन ऑलरेडी, क्योंकि आपका लर्निंग डिपार्टमेंट जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आप बता सकते हैं कि यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज, यू हैव मशीन लर्निंग नॉलेज, यू नो पाइथन। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको उसी डायरेक्शन में ही थोड़ा ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें उनका एफर्ट बचेगा और उनको ऑलरेडी एक ट्रेन पर्सन मिल जाएगा। सो इट विल बी कंपैरेटिवली ईजियर फॉर यू टू ट्रांजिशन इनटू दीज रोल्स, राइट। सो पहला मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि इफ यू आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब इन IT, तो पहले आप थोड़ा सा डिसाइड ये करें कि किस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन का प्रिपरेशन करें, और फिर उसके बाद आप उसके लिए जॉब ढूंढें। इट मे बी इट्स ऑफ कैंपस, मे बी इट्स ऑन विद कैंपस, जो भी रहता है, बट दोनों में अगर आपको पहले से उस चीज का नॉलेज है तो आपको काफी हाई चांस होता है कि उसी फील्ड में वापस नई कंपनी में प्लेस मिले या प्रोजेक्ट मिले, राइट। तो ये एक ओपिनियन था। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अराउंड इट तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू कि क्यों इतना बज़ है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो लेट्स सी सम फिगर्स एंड फैक्ट्स, कि जो मैं नहीं कहने वाला आप लोगों से, आपको डेटा जो कि इंटरनेट से मैंने लिया है वही आपको बताएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, व्हाट इज द बज़ अराउंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम ये थोड़ा सीखेंगे। देन व्हाट इज द फ्यूचर डिमांड ऑफ AI एंड ML, and then we are going to see a detailed understanding of what is data science, machine learning and artificial intelligence, right? And then उसके कुछ एप्लीकेशन जो हमारे आसपास हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, right? So let's see क्या है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उसके पहले क्या मैंने इंटरनेट से निकाला है आप लोगों की हेल्प के लिए, राइट। सो अगर आप ये देखेंगे तो ये डेटा मैंने निकाला है नेस्कॉम की वेबसाइट से। तो आप लोग जानते होंगे नेस्कॉम क्या है, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, बट जितनी भी IT कंपनीज है वो नेस्कॉम से एसोसिएटेड होती है। और उन्होंने ही एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिन्होंने बताया है कि अभी अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज अ ह्यूज गैप। दिस इज रेड बार मतलब सप्लाई है और ब्लू बार मतलब डिमांड है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, लाइक ब्लू बार इज टोटल जॉब ओपनिंग एंड रेड बार इज यूनिवर्सिटी टैलेंट जो बाहर निकल के आ रहा है। तो उसमें शुरुआत में गैप थी अराउंड 62,000 पीपल का गैप था 2018 में, और 2020 में वो बढ़ के 140,000 हो गया है, 140,000, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 14 मिलियन और सो। सो बहुत बड़ा गैप है। नाउ ये गैप हम लोगों को फिल करना है। नाउ कंपनीज में ओपनिंग है, लोग चाहिए, बट मार्केट में लोग अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उनको नॉलेज नहीं है। लोग अवेलेबल हैं जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, किसी को 15,000 का जॉब मिलता है, किसी को 20 का मिलता है, किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के। कुछ लोग रहते हैं जो 30 से 40,000 भी कमाना शुरू कर देते हैं शुरुआत से, बट स्टिल वो जॉब भी जो रहेगा उन लोगों को इसलिए मिलता है कि दे नो सम जावा और सम अदर थिंग्स, बट स्टिल तब भी काफी बड़ा गैप है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी अपना बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज है उसका गैप है। दिस इज व्हाट आई एम नॉट सेइंग, इट इज समथिंग नेस्कॉम इज सेइंग, राइट। तो नेस्कॉम का डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये गैप आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपने सुना होगा ऑटोमेटेड कार, एनीबॉडी हैव हर्ड कि व्हाट इज ऑटोनोमस कार? ऑटोनोमस कार का किसी को पता है क्या होता है? यस सर, मुझे पता है। हाँ, ऑटोनोमस कार क्या होता है, आप बता पाएंगे? सेल्फ ड्राइव होती है, ऑटो ड्राइव होती है सर, जो अपनी माइंड की थिंग्स चलती है सर। एक्सीलेंट। सो अभी तक आप लोगों ने अलग अलग हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, मैट्रिक्स वगैरह और इस तरह की मूवीज देखी होगी, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि कार है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, ड्राइवरलेस कार होती है वो। पर अब ये जो चीजें हैं जो हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखते थे वो रियलिटी पे आना शुरू हो गई है।
आपने नाम सुना होगा टेस्ला कंपनी का एंड गूगल का। तो गूगल और टेस्ला ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस डायरेक्शन में ऑलरेडी इनोवेशन करना शुरू कर दिया है। द कार्स आर रेडी। और आपको जान के हैरानी होगी कि कार गूगल कंपनी बना रही है। सो गूगल इज मेकिंग कार, टेस्ला इज मेकिंग कार, एंड दे आर ट्राइंग टू पिच इन दैट ड्राइवरलेस कार, ऑटोनोमस कार, राइट। तो ऑटोनोमस कार जो होता है ना, वो कंप्यूटर विजन के थ्रू चलता है, और कंप्यूटर विजन के थ्रू चलते हुए वो समहाउ ड्राइवरलेस होने वाला है। तो अभी आप सोचिए कि उबर और ओला जो दो कंपनी है इंडिया में, कितना बड़ा है उनका स्टेक है, और साथ में ऑटो जो छोटे छोटे ऑटो चलते हैं वो, एंड साथ में अनऑर्गेनाइज्ड कार इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में। अब ये जो हमारा मार्केट है, इस मार्केट को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें, अभी तक वो सब ड्राइवर्स के साथ हो रही थी, अगर उसको ड्राइवरलेस से रिप्लेस कर दिया जाए तो यू कैन सी कि कितना बड़ा काम आएगा। पहला तो इतनी सारी कारें बिकेंगी, या अगर कार ऑलरेडी है उसको अपग्रेड करना है तो उसमें सॉफ्टवेयर लगेगा इतना, और एक बार वो सॉफ्टवेयर लग गया तो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस लगेगा। अगर उन सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस लगेगा तो वो मेंटेनेंस करेगा कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एंड दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर समथिंग, ऑफ कोर्स दे विल बी द इंजीनियर्स predominantly working in the field of computer vision. Now किसी को computer vision पता है क्या होता है? Anybody know what is computer vision? OpenCV वगैरह ये सब से रिलेटेड है। करेक्ट, मतलब बहुत हाई लेवल का आइडिया है, बट OpenCV या कंप्यूटर विजन क्या होता है ना कि आपका कैमरा रहेगा, कैमरा आपका फोटो खींचेगा मतलब लैपटॉप कैमरा है, सो उस लैपटॉप कैमरा पे आपकी लाइव फीड रहेगी। उस लाइव फीड के बेसिस पे एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं या उसको ट्रैक करते हैं वो कंप्यूटर विजन के थ्रू होता है। तो ऐसे कंप्यूटर विजन में क्या होगा, कार के आगे 2 कैमरा लगा दिए, वो कैमरा सामने देखेगा कि सामने कुछ कार या ऑब्स्टेकल या कुछ गड्ढा या फिर ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं है। अगर नहीं है या अगर आता है ट्रैफिक सिग्नल तो रुकना है, नहीं है तो चलना है, अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उससे आगे बढ़ना है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये सब चीजें जो रहेगी उसको कंप्यूटर विजन इंजीनियर देखेंगे, और उसके पीछे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स, राइट। केरास होगा, डीप लर्निंग होगा, अपना कंप्यूटर विजन का VGG16 और रेसनेट 16 और बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो लगे होते हैं उसके पीछे। तो उसको बनाने वाला कौन? उसको बनाने वाले हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर एंड सो ऑन। तो आप सोच सकते हैं इसलिए इतना डिमांड गैप आता जा रहा है, और अभी बहुत कम है ये डिमांड गैप जो बता रहा है नेस्कॉम, आगे अगले 5 सालों में और बढ़ने वाला है, राइट। और जो डिमांड आने वाली है उतने तो अभी हम लोग कहेंगे कि वर्ल्ड में या इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होना भी थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं 2 साल पहले तक वो नॉर्मल BE कंप्यूटर साइंस वगैरह का मेजर चलाते थे, नाउ दे आर स्टार्टिंग विद द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेजर एज वेल। वो एज अ कोर सब्जेक्ट भी रहता है सिलेक्टिव के लिए। अभी मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो दे आर सेइंग दैट आई एम BE CS, आई एम BE इलेक्ट्रॉनिक्स, बट 3 से 4 साल बाद देखेंगे तो वो लोग बोलेंगे आई एम BE इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम BE इन मशीन लर्निंग एंड IoT। तो वो चीजें अगले 2 से 3 सालों में आने वाली है, और जो आप लोगों ने फील्ड भी किया होगा, शुरू हो गया है वो, तो ये और जाके बढ़ने वाला है। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ राइट टाइम टू स्विच, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, राइट। तो ये एक नेस्कॉम का डेटा है। दूसरा एक आर्टिकल है द वीक्स मैगजीन का। इस मैगजीन के हिसाब से जो भी स्पीकर थे उन्होंने क्या कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमन इन लॉट ऑफ जॉब्स। तो ह्यूमन को रिप्लेस करेगा AI बहुत सारे जॉब में। थोड़ा सा दुख वाली खबर है, बट आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छी खबर भी है कि अगर वो ह्यूमन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा कौन? फिर से ह्यूमन। सो AI रिप्लेस करेगा ह्यूमन को, और AI को चलाएगा फिर से ह्यूमन, जो कि आप लोग होंगे, राइट। सो इसलिए इट्स अ बेटर टाइम टू लर्न इट एंड फ्लो विथ इट, राइट। अदरवाइज जितना भी अपना नॉर्मल इंडस्ट्री के वर्क होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑटोमेट होने वाले हैं और होंगे भी। आप लोग जानते हैं कि आज से 5 साल पहले वेब डेवलपमेंट जो था, आप जानते हैं वेब डेवलपमेंट किस तरह से होता था? वर्डप्रेस से होता था। वर्डप्रेस तो खैर अभी आया है, बट इससे पहले जो था वेबसाइट डेवलप करना इटसेल्फ इज अ बिग जॉब, और उसके अंदर बहुत डेडिकेटेड वर्क होते थे, बहुत डेडिकेटेड जॉब्स होते थे। हर बंदा वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहता था, बिकॉज वो बहुत आई वुड से कि लुक्रेटिव जॉब होता था। इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी बहुत कुछ बज़ में था आज से 4 से 5 साल पहले। अभी वो नहीं कोई बात करता है। somebody says कि मैं वेब डेवलपर हूँ, मतलब हम लोग उसको समझते हैं कि वो डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट बनाता होगा। तो पहले वेबसाइट बनाना मतलब कोडिंग करना, अभी वेबसाइट बनाना मतलब जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज करना, जो कि कोई भी एक बंदा जो रहेगा बहुत लो सैलरी में कर सकता है, राइट।
तो ऐसा ही अभी आगे जाके जो करंट टेक्नोलॉजीज मार्केट में चल रही है, बी इट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बी इट बैक एंड डेवलपमेंट, बी इट इंटीग्रेशन, ये सब भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऑटोमेशन आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने टर्म सुना है डेवऑप्स, किसी ने डेवऑप्स सुना है? क्या होता है डेवऑप्स? किसी ने सुना है? क्यूबरनेटिस, डॉकर, जेनकिन? नो सर। नहीं सुना है ना? ये आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गाइस, सो ये सभी चीजें आप लोगों को अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इंडस्ट्री में जाएंगे, दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो टायर 1 सिटी से आते हैं या कुछ बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज से आते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। सो ये ऑलरेडी उन लोगों के लिए रेगुलर डेली का जॉब रहेगा, जो कि आपके लिए फर्स्ट टाइम सुनने वाली टर्म रहेगी। तो थोड़ा सा अपडेट रहें, थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च करते रहें। डेवऑप्स मतलब एक टूल है जिससे आपने जो भी टोटल रिलीज और डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस रहता है वो ऑटोमेट होता है, और वो भी एक बहुत हॉट एंड इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, राइट? तो ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें लर्न करते रहना, थोड़ा सा इंटरनेट देखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट पे थोड़ा यूट्यूब कम करो, फेसबुक कम करो, और थोड़ा पढ़ना शुरू करो, करेक्ट? थोड़ा टाइम फेसबुक का निकालो, थोड़ा टाइम इंस्टाग्राम से कम करो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स या फिर जो नए टूल आ रहे हैं उसको थोड़ा देखना शुरू करो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट विथ यू ऑल गाइस। वो करोगे ना आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा पीछे रह जाओगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, naukri.com, जानते ही होंगे आप लोग ये, राइट? हाँ सर। naukri.com पे मैंने एक छोटा सा क्वेरी लिखा, आप भी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट, और आप लोगों को करना चाहिए बीइंग जॉब सीकर। तो अब अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है तो ऐसी चीजें आपको करना चाहिए। naukri.com, और कोई जॉब पोर्टल का नाम आपने सुना है अभी तक नौकरी के सिवा? Yes, sir. कौन सा है? जल्दी बोलो। Indeed, Hirect. LinkedIn, then LinkedIn, Indeed, and बस Placement India. मॉन्स्टर, चलो तीसरा, और कोई? Sir, workindia.com. बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, मतलब ठीक है, बट स्टिल अभी भी बहुत से मिसिंग है। किसी ने ग्लासडोर का नाम नहीं सुना होगा, किसी ने IIM जॉब्स का नाम नहीं सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, shine.com है, और भी ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जो कि जॉब के लिए हेल्प करती है। ऑफ कोर्स इंडीड एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, एंड ये भी स्पेशली, बट आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो इंडीड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सोशल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। बट अभी के लेवल के लिए नौकरी काफी है, ठीक है? तो नौकरी पे मैं गया और मैंने एक सिंपल सा क्वेरी लिखा। आप जानते हैं मैंने क्या क्वेरी लिखा, वो नौकरी बता रहा है मैंने क्या क्वेरी लिखा। मैंने लिखा मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। जॉब भी नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इतना लिखा। और आप जानते हो यहाँ पे मेरे पास जो सर्च रिजल्ट आया है वो है 18,256। वो है आज से 2 दिन पहले जब मैंने क्वेरी चलाई थी। आप भी किसी दिन चलाइए, लगभग इसी के आसपास का आपको ओपनिंग मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये नौकरी कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना रिक्वायरमेंट होता है, राइट? इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ मुझे ओपनिंग का डेटा नहीं मिला, मतलब कितना सैलरी रेंज होता है, बट नॉर्मली सैलरी भी काफी अच्छी होती है। एनीबडी हु इज इन एक्सपीरियंस रेंज ऑफ 2 to 8 ईयर, समथिंग अराउंड 15 to 20 लाख बहुत नॉर्मल होता है। जब हम लोग जॉब करना शुरू किए थे, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तो अब हमारे लिए जब प्लेसमेंट करते थे तो स्टार्टिंग होता था 3.2 या 3 के आसपास प्लेसमेंट होते थे, और वो एक अच्छा माना जाता था। आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो आज भी जो स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट आज की डेट में भी आप अगर कंप्यूटर साइंस या ईसी या कोई भी ब्रांच रहेगा, उससे इंजीनियरिंग करके बाहर आओगे, आपको स्टार्टिंग पैकेज लगभग वही मिलेगा। हमको 3 मिलता था आज से 20 साल पहले और आप लोगों को 3.5 या 4 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप लोगों को पता होगा ये चीज मुझसे ज्यादा, करेक्ट? तो डाटा साइंस का, हाँ बोलिए बोलिए। तो ये आप समझ सकते हो ना कि क्या है। 20 साल हो गए, 20 साल में अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी जो 2 लाख की होगी, आज की डेट में वही प्रॉपर्टी 2 लाख वाली प्रॉपर्टी 40 लाख की हो चुकी होगी। बट 20 साल में एक जॉब जो था 3 लाख का जो होता था, वो आज भी 3.5 लाख का ही पहुंचा है। May I say something, sir? Yes, sir. Go on. In fact, आज से साल पहले जो डिमांड थी वो आज और कम हो गई है। करेक्ट। मैं एक नॉर्मल बीटेक देखूं या नॉर्मल एक बी देखूं और naukri.com पे अगर मैं सर्च करूं फ्रेशर के लिए जॉब, तो दे आर गिविंग पैकेज ऑफ जस्ट अराउंड 1 lakh to 2 lakhs पर एनम। सो अगेन ये आयरनी है इंडिया की नहीं बोलूंगा, बट रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, और एक तरह से अच्छी खबर भी है इंडिया के लिए, बुरी भी है। अच्छी इसलिए कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं, और नॉलेज वाइज थोड़ा सा हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं।
जी सर, at the same time, if we check the job for freshers for data science machine learning, same on Naukri.com only, there the package starts from 4 lakh onwards. It goes up to 12-13 lakhs. Great. तो आप जान सकते हैं ना, क्योंकि आप अगर ये समझेंगे कि जो डिमांड गई है वो क्यों नीचे जा रही है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो तो आप प्लेन इंजीनियर है। लाइक मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ आज, और अगर मुझे अपनी टीम में किसी को प्लेस करना है, मतलब मुझे अपनी टीम में किसी को लेना है, तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ कि उसका स्किल क्या आता है, क्या उसको पाइथन आता है, क्या उसको, बिकॉज आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, तो मैं डेटा साइंटिस्ट ही ढूंढूंगा। अगर वो फ्रेशर भी है तो मुझे चलता है, राइट। अगर वो फ्रेशर भी है तो मुझे चलता है, प्रोवाइडेड कि उसको नॉलेज रहे। तो नॉलेज है और फ्रेशर है तो भी मेरे को चलेगा। अगर वो 1 साल कहीं पे काम किया है बट उसको नॉलेज नहीं, तो मुझे नहीं चलता वो, क्योंकि मैं आज की डेट में एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। और अगर स्टार्टअप का आप बोलेंगे तो इंडिया में वैसे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए, आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया इज नाउ अ स्टार्टअप हब। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वर्क के बेसिस पे पेमेंट होता है, मतलब वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन योर एक्सपीरियंस और डिग्री और एनी अदर थिंग, राइट। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी करनी होती है, वहाँ पे दिखाना नहीं है, डिलीवरी करनी है। तो डिलीवरी में जब भी लेते हैं, आपको अगर नॉलेज है, अच्छा डेप्थ में नॉलेज है, आप काम कर सकते हो, सो देन स्काई इज द लिमिट। पैकेज का कोई वहाँ पे टेंशन नहीं है, आप 2 मांगोगे वो 4 देंगे, बट काम में अगर आप 1 घंटे का बोलोगे वो 2 घंटे काम करवाएंगे। और करवाना भी नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारा इतना काम कर दो ना, वो आप 1 घंटे में करो, आधे घंटे में करो या 2 घंटे में करो, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू डू इट, राइट। तो ये बहुत जरूरी है गाइस कि आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अभी वो नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। वो देखा होगा ना वीरू सहस्त्र बुद्धि वाला, 3 इडियट्स, ठीक है, जिंदगी एक रेस है, अगर नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। तो वही वाली चीज है, और लिटरली वो सही है, ठीक है। आमिर खान ने बहुत अच्छी चीज उसके अंदर कम्युनिकेट करी आपको कि प्रेशर नहीं लेना है, जहाँ इंटरेस्ट है वही पढ़ना है, आप भी वही करो। बट अगर आपको मशीन लर्निंग डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर उसको आप अच्छे से करो, गो विथ फुल हार्ट। ऐसा नहीं करना कि बस आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ लिया, सीख लिया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, 2 कमांड पाइथन में चला के कर ली, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखोगे, हो सकता है आपने यूडेमी पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें उन्होंने क्या किया है, तो सिर्फ पाइथन कमांड को कॉल किया है, लीनियर रिग्रेशन फिट वाला कमांड किया, एग्जीक्यूट, और उसके बाद रन किया, एक्यूरेसी देख ली, हो गया काम। वैसा नहीं होता है, दैट डज नॉट हैपन। हम जानते हैं कि कैसे काम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो रन कर दोगे, कोई आपको नहीं लेने वाला, क्योंकि यूट्यूब वीडियो आपने देखा है, उसके ऊपर ये भी देखो कि कितना हिट है उसके ऊपर, उस पर 4 मिलियन लोग दूसरे भी उन्होंने भी देखा है। तो उससे क्या मिला आपको, आपने जो सीखा वो 4 मिलियन लोगों ने भी सीखा है, तो कुछ नया नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो लर्न समथिंग विथ सम गुड नॉलेज, ओके। तो ये थोड़ा सा रखो अपने पास में, ठीक है। नाउ ये एक अलग में डेटा निकाला, किसी ने कहा था monster.com, तो ये monster.com नहीं बोला है, monster.com ने आपको बताया है कि जो मशीन लर्निंग की और डेटा साइंस की जो अलग अलग फील्ड होती है। नाउ ये आपके पास एक डेटा है, थोड़ा सा मेरे पास पुराना है क्योंकि नया नहीं मिला है मुझे, 2015, 16 और 17, 3 साल का लिया है हमने। और आप देखो कि जब 2015 था तो जॉब जो थे वो 5000 से भी कम थे, 2017 आते आते वो 15 से 17,000, 20,000 के आसपास वो जॉब पहुंच गए। और आप देखो कि ग्रोथ जो रहा है कितना स्टीप रहा है, स्पेशली ये जो ब्लू वाली लाइन है मशीन लर्निंग की है, तो मशीन लर्निंग के जॉब आप देखो कैसे एकदम बढ़े हैं, राइट। इसी तरह से डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट होता है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। एनएलपी जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन भी रहा है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग भी ऑफ कोर्स, बट एनएलपी भी जो है उसमें भी बहुत तेजी से डिमांड आई है। एनएलपी मतलब चैटबॉट और अपना जो भी एंटिटी एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है उसकी बात कर रहे हैं। अभी 2020 का डेटा देखोगे तो वो ऐसा जा चुका होगा, जॉब पूरा जो कर्व है बहुत लंबा स्टीप गया होगा। स्पीच रिकॉग्निशन ये आपने सुना होगा ना, एलेक्सा अभी अभी आना शुरू हुआ है 2 साल में ही, एलेक्सा, ओके गूगल, सिरी, सुना है ना ये नाम, राइट? यस सर। हाँ, तो ये क्या है, ये स्पीच रिकॉग्निशन है। अभी पाइथन में आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है जॉब ओपनिंग्स स्किल ब्रेकडाउन monster.com। तो ये आपने अभी पाइथन में ऐसा हो गया है कि आप ये सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखो और पाइथन पढ़ के बताएगा व्हाट इज रिटन हियर, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट टू स्पीच। इसी तरह से स्पीच टू टेक्स्ट भी होता है। तो बहुत सी चीजें होती है और उसके फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। तो आप देखो कि किस तरह से ये सब चीजें जा रही हैं, और ये इतना इसलिए डिमांड में है क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका यूज हो जाता है, कहीं पे भी आप यूज करो। आपने सुना है कभी कि कोविड के अंदर मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन का यूज हुआ है? किसी को पता है कि कोविड भी आप पता कर सकते हो, कोविड डिटेक्शन? हाँ सर, डेटा एनालिसिस। यस। नहीं, एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, covid19.org वेबसाइट की या worldometer.org की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ एक्चुअली, बट आपको पता है कि कंप्यूटर विजन के थ्रू आपके जो लंग्स है उसका एक्सरे लेके
कंप्यूटर विजन बता सकता है, मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं है वहां पे, कंप्यूटर विजन बता देगा कि ये जो बंदा है ना इसको कोविड है, इसके पास मत जाना, ऐसा बता देगा वो। और ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं मार्केट में, कोरिया की कंपनी भी है जो वो बेचती है, राइट। और वो कितना महंगा आता है पता है आप लोगों को? किसी को पता है कि कितना महंगा है? किसी का टेस्ट करना है कोविड के थ्रू, कितना कॉस्ट आएगा? अभी नॉर्मल कितना आता है? नॉर्मल कितना आता है सिटी स्कैन लगा के, या फिर मे बी जो भी आपका आरटीपीसीआर वगैरह रहता है, कितना कॉस्ट है? सिटी स्कैन 3000 अप्रोक्स। सिटी स्कैन 3000 है, या फिर आप चलो आरटीपीसीआर करोगे 800-900 रुपए भी गवर्नमेंट ने कर दिया, इतना ही है, राइट। ठीक है 800 रुपए वो है, पर वो जो सॉफ्टवेयर उसका कितना कॉस्ट होगा, कोई बता सकता है? नो सर, नहीं ना, वो है पर It is like somewhere around in lakhs. लाख्स में क्या? अरे वाह, नहीं दीपेश, उसका कॉस्ट है 50 पैसा, 50 पैसा पर स्कैन। Oh, okay. अगर 50 पैसा, हाँ 50 पैसा, करेक्ट। क्यों इतना सस्ता क्यों वो? Everyone will buy this ना। Already coded है सर में सब कुछ। हाँ सब कोड है ना यार, एक बार कोड बना दो, ठीक है, एक बार सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ही तो बनाना है। आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके बाद जो अपना एक्सरे होता है, एक्सरे कैसे लेते हैं? तो एक्सरे के लिए आजकल डिजिटल एक्सरे हो गया। कभी डेंटिस्ट के आप लोग गए होंगे, पहले जो एक्सरे होता था वो फिल्म पे होता था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना जमाना हो गया है, हम एआई वाले हैं। तो अभी डेंटिस्ट क्या जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास एक मशीन होती है, सीधे वो फोटो जैसे हम लोग मोबाइल से खींचते हैं, उसके पास भी मशीन होती है, उससे फोटो खींचता है, जिसको डाइकॉम इमेज बोलते हैं। तो वो डाइकॉम इमेज है, उसको उन्होंने कंप्यूटर विजन के सॉफ्टवेयर में डाला और कंप्यूटर विजन का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको क्लासिफाई कर देता है। किसी ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम लिया था इससे पहले, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी होता है क्लासिफिकेशन कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई भी अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं लगा होता उसके पीछे, थोड़े एडवांस एल्गोरिदम होते हैं, पर वो बता देते हैं कि इसको कोविड है या नहीं है, तो वो सीधे यस और नो बता देता है कि यस ही इज डिटेक्टेड बाय कोविड, ही इज नॉट। तो 50 पैसा कॉस्ट है उसकी। अभी आप बताओ कि जहाँ पे आपका 800 रुपये लगता था उसकी जगह 50 पैसे लग गया, और जो रिजल्ट आने में आपका करीब 24 घंटे से 48 घंटे लगता था जब कोविड पीक पे था, वो जो है 5 मिनट में हो जाता है। तो डिफरेंस है नहीं है? और अगर डिफरेंस है तो इसकी डिमांड है या नहीं है? होना चाहिए डिमांड, नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप सोच सकते हैं पावर। और अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना लेते हैं तो आप बताओ कि आपकी डिमांड होगी या नहीं होगी? होगी फिर इवन, और आप जानते हैं कि आज की डेट में जब कोविड डिटेक्ट हुआ था उस टाइम पे, और आज भी बात करेंगे तो आज भी सॉफ्टवेयर के लिए तो नहीं बात कर रहा, बट आज भी अगर आप कोविड का कोई एक इजी वाला वे ढूंढ के ला देते हैं 800 रुपए से कम वाला, तो इवन पूरा गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा कि हमें वो टेक्नोलॉजी दो आप लोग। ऐसा होता है नहीं होता है? आपने सुना होगा, आज का दैनिक भास्कर भी पढ़ा होगा, आजकल मेरे ख्याल से यूएस ने एक अप्रूवल मांगा है, उन्होंने नेजल मतलब सांस के थ्रू पता कर लिया है कि कोविड होता है या नहीं होता है। इजराइल की एक कंपनी है, उसने सिर्फ अपना फिंगरप्रिंट जो डिटेक्शन होता है उससे पता कर लिया कोविड है या नहीं है। तो थोड़ा हम लोग इस मामले में पीछे हैं, बीइंग इवन सॉफ्टवेयर जायंट। इंडिया में सॉफ्टवेयर के सबसे ज़्यादा लोग हैं, बट स्टिल वी आर लिटिल लैगिंग अहेड। पर आप जान सकते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, और हम लोग कितना पीछे हैं, करेक्ट। तो ये ऐसी चीज़ें बनाओगे, आपका डिमांड तो होगा, यहाँ नहीं होगा तो आप तो जानती हैं ब्रेंडन तो होता ही है यहाँ पे, यूएस यूके में हो जाएगा, कोई ना कोई आपको ले जाएगा यहाँ से उठा के, ठीक है। तो बहुत डिमांड है क्योंकि मार्केट में, यहाँ नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो किसी दूसरे देश में, राइट। बट दैट्स अ रियली हॉट केक। नाउ अगला वाला, अभी एक और सुनो, ये मैंने फिर से इंटरनेट से निकाला है, एवरेज सैलरी, ठीक है, एवरेज सैलरी प्रीमियम बाय टेक जॉब स्किल एरिया। तो उसके अंदर मैंने जब निकाला तो मुझे ये डेटा मिला। उसमें आप देखोगे तो मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है वो सभी जो है एआई से रिलेटेड है, बट स्पेशली आईटी ऑटोमेशन इज द मोस्ट इन डिमांड नाउ। आईटी ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेट करना है, और ऑटोमेशन अगेन जो रहता है वो एआई का कंपोनेंट ही होता है। आईटी ऑटोमेशन बिगर अम्ब्रेला है, उसके अंदर एआई होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग उसके अंदर होता है। तो आईटी ऑटोमेशन बड़ा ब्रांच है, उसके अंदर ये छोटे छोटे आते जाते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट एआई एंड एमएल है, और आईटी ऑटोमेशन टॉप पे है, जो कि अगेन एआई से ही आगे जाके मर्ज होने वाला है। तो ये डिमांड है मार्केट के अंदर और पेमेंट है, ठीक है। स्टिल ये थोड़ा पुराना डेटा मेरे पास है, बट बहुत रिलेवेंट है, और ये कंपनीज हैं जिन्होंने पेटेंट्स बना रखे हैं, और ये भी थोड़ा पुराना डेटा है 2018 का, 2018 का ना। अभी बोलोगे अगले 3 साल में इन्होंने बहुत सारे बना लिए। तो आप नाम लो बड़ी कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी जो है ओवरऑल वर्ल्ड में, तो सबसे पहला नाम आता है गूगल का, दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट का, राइट, जो कि
लोगों के लिए ड्रीम टाइप का होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास सबसे ज़्यादा 18,365 पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स का मतलब उन लोगों ने अपने लिए प्रोप्राइटरी बना के रखे हैं ये। इसी तरह से गूगल है 9536 है। इसी तरह से आप बात करेंगे तो क्वालकॉम एक बहुत बड़ी कंपनी है, सैमसंग है, IBM है। IBM का आपने IBM वाटसन का नाम सुना है? नहीं सुना ना? AI में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर और सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था सॉफ्टवेयर फील्ड में, वो IBM ने ही किया था। लोग सोचते होंगे कि गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, नहीं, IBM वाटसन ये था पहले। और उसने बहुत आगे बहुत जल्दी किया था और उसके बाद उसके शेयर प्राइसेस एकदम से बहुत तेजी से बढ़े भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस रेस में पीछे रह गया, उन्होंने ज़्यादा उसमें R&D नहीं कर पाए। सो दे आर नाउ लेगिंग बिहाइंड। IBM वाटसन का नाम आपने अब सुना भी नहीं होगा, बट दैट इज अगेन वेरी ओल्ड। हाँ बताइए सर। IBM Watson speech to text and text to speech is a module in IBM. करेक्ट। तो वही है, करेक्टली वही है। और उसमें आप देखिए कि कितना अलग अलग पेटेंट्स है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे हर कंपनी पेटेंट लेते जा रही है। और पेटेंट्स भी कितने, 78,085 ये पेटेंट्स हैं। इनको पेटेंट करवाने के लिए ऑफ कोर्स पीछे बहुत बड़ी टीम रही होगी, और इतनी बड़ी टीम है तो उसके पीछे आप सोच लीजिए कितना काम होगा। ठीक है, देन उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये क्या होता है एक्चुअली? तो ओवरऑल ये सब कुछ नहीं है, ऑटोमेट करने का तरीका है। कुछ ना कुछ हमको ऑटोमेट करना है। जैसे कोविड डिटेक्शन जो रहेगा हमको ऑटोमेट करना था, हमने कंप्यूटर विजन यूज कर लिया। अगर हमको ये पता करना है कि बंदा डिफॉल्टर है या अच्छा है, या लोन वगैरह आप इशू कर रहे हैं, तो पहले बैंक जो रहती थी वो लोन कैसे देती थी? अगर किसी बैंक को लोन इशू करना, यू आर अ बैंक मैनेजर, आपको लोन इशू करना, आप क्या करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू इशू द लोन? सर उसका क्रेडिट स्कोर चेक करके। बहुत बढ़िया शयंतन। एनीथिंग एल्स? So by checking सर his आजकल income per annum. इनकम है, क्रेडिट स्कोर है, और कुछ? गारंटी सर। हाँ, गारंटी नहीं, मतलब अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो क्या, उसका घर रख लो आपके पास, पेपर हो गया, उसको कुछ नहीं देखना है। बाकी तो वो करेगा घर निकालने के लिए अपना, तो वो नहीं, वो सिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे क्रेडिट स्कोर बोला उसका, फिर उसका सैलरी कितना है, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उसने लोन कितने ले रखे हैं, फिर उसके डिपेंडेंट कितने हैं, उसका खर्चा कितना है, उसके ओन हाउस में रहता है या रेंटेड हाउस में रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें पहले भी होता था, अभी भी होता है। तो पहले क्या होता था कि बैंक वाले जो थे वो सब डॉक्यूमेंट आपके कलेक्ट करते हैं ना, सैलरी स्लिप दो, ये दो, वो दो, तो वो यही जज करने की कोशिश करते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद ये सब जाता था बैंक मैनेजर के पास, और बैंक मैनेजर जो था उस दिन अगर उसकी बीवी ने खाने में मिर्ची ज़्यादा डाली है तो वो क्या करता था, नहीं आज मूड अच्छा नहीं है, रिजेक्ट करो ये लोन एप्लीकेशन, वैसा होता था। बट अभी क्या है, अभी सब ऑटोमेट हो गया है, डिपेंडेंट नहीं है, पर्सन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर उसका मूड ऐसा नहीं कि अगर बैंक मैनेजर का मूड अच्छा है तो वो आपको अप्रूव कर देगा लोन, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। फिर अब क्या होगा कि फिर हम लोगों के पास एप्लीकेशन आएगा कि अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर उसको पीछे से जाके थोड़ा पैसा दोगे तो वो अप्रूव कर देगा। ऐसा नहीं होता आजकल, पहले होता था, आपने सुना भी होगा कि थोड़ा बैंक मैनेजर को खिला दो लोन मिल जाएगा, राइट? तो वो क्या होता है कि वो जब तक ह्यूमन टच रहेगा करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जानते हैं आप लोग, जहाँ पे ह्यूमन रहेगा थोड़ा करप्शन वगैरह हो सकता है, सब लोग करते हैं, मतलब ऐसा बहुत नॉर्मल सा हम लोगों ने सुना हुआ है, राइट? तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए करप्शन को? तो आपने देखा होगा कि आजकल इंडियन गवर्नमेंट और जो भी अपना करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सारा ऑटोमेशन हो गया है। पहले जो था आपका व्हीकल ट्रांसफर वगैरह होता था तो वो आपको RTO जाना पड़ता था, आजकल सब ऑटोमेट हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई है हर चीज़ की, ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन सारी चीज़ें आपके घर में आ जाएगी, बुकिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई गवर्नमेंट सेक्टर में भी। हुआ है नहीं हुआ है? आपने फील किया है ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। किया है ना? तो ये ऑटोमेशन हो गया। अभी ये सोचोगे कि इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़, और उसके अंदर कितने अलग अलग लोग रहेंगे जिनका कुछ एक छोटा सा डिपार्टमेंट ले लो, लेट्स से आधार कार्ड बनाने का हुआ, अगर वो ऑटोमेट हो गया है तो 138 करोड़ का ऑटोमेशन, अगर एक ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर आपको 100 रुपए मिलते हैं, सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 138 करोड़ इंटू 100 मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका इतने करोड़ का मतलब हाउ मच इट विल बी, 1,38,000 करोड़। सुना भी नहीं होगा नाम इतना, यार इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना मनी है सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट में, 1,38,000 करोड़। थोड़ा सोच रखते हैं कितना वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम है,
अगर आप सोचो कि ऐसी कोई कंपनी आप लोग सभी लोग मिलके, चलो अपने पास 40-47 लोग हैं यहाँ पे, 47 लोग मिलके भी ऐसी कंपनी कर देंगे तो कितना हमारा सैलरी होगा, कितना हम लोगों को मिलेगा पैसा उससे, राइट? तो इसीलिए तो आजकल हर चीज मल्टी बिलियनर होती जा रही है। जो भी कंपनी स्टार्टअप चलती है वो चल पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, इतना काम है। और ये मैंने जस्ट एक छोटा सा बताया आधार कार्ड वाला। आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर में ही है आप लोग, तो थोड़े दिनों पहले आपके घर पे किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है इंदौर में? खुद बार सर मैंने तोड़ा है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया आपने। बट एट द सेम टाइम आपके घर पे कभी चालान आया? नहीं आया? आया है क्या? अच्छा। पहले मैंने सुना था इंदौर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ कैमरा वगैरह लगा रखे हैं जिनसे ऑटोमेटिकली चालान आ जाता है। हेलमेट पहना है तो हर ऐसा है क्या? यस सर, ऐसा है। यस सर। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। आगे जाके देखो क्या होता है। ये सब एआई के खेले हैं, मतलब यू कैन ब्लेम एआई एक्सपर्ट्स फॉर दैट। तो ये सब एआई है, राइट? कि कैमरा ने देखा आपका फोटो, आपने हेलमेट नहीं पहना है, चालान काट दो इसका नंबर प्लेट पढ़ के। ये बहुत छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है, राइट? आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकता है इसका आप जान सकते हैं। अभी सोचो कि पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के अंदर आप अभी कभी गए नहीं होंगे, कभी जाने का मौका नहीं पड़ा होगा, पर कभी गए हो गलती से तो एक बिल बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जितने भी क्रिमिनल्स रहते हैं उनके फोटो रहते हैं। उस फोटो पे लिखा रहता है किसी ने इसको देखा हो तो इसकी खबर दो, इनाम 50,000, इनाम 1 करोड़। कितना इनाम है ना, कितना इनाम रखे रे सरकार हम पे। गब्बर का डायलॉग होगा, कितना इनाम रखे रे सरकार। तो 50,000, पूरे 50,000 वो सांबा बोलता है ना, तो वही वाला। तो उसके अंदर क्या था, क्यों ऐसा करते? क्योंकि उनको पता नहीं कि बंदा कहाँ पर है। तो जिसको भी पता होगा इनाम के चक्कर में इंफॉर्मेशन देगा, तब हम पकड़ेंगे उसको, क्रिमिनल को, राइट? बट एआई है, एआई की दुनिया में ये सब नहीं होता इनाम वगैरह का। उसके अंदर तो क्या है, जितने भी कैमरा हमने मॉल्स में इंस्टॉल करके रखे हैं, रोड्स पे इंस्टॉल करके रखे हैं, बस उस कैमरा की जो फीड रहेगी या उसका जो सिस्टम है, उसको ये बता दो कि गब्बर सिंह को हमको ढूंढना है और गब्बर सिंह का फोटो अपलोड कर दो। जैसे ही गब्बर सिंह का फोटो अपलोड किया तो हमारे जो कैमरा रहेंगे उसके पीछे का जो एआई सॉफ्टवेयर रहेगा वो मैच करेगा कैमरा फीड से कि गब्बर सिंह ये घोड़ा से दौड़ते हुए सिग्नल क्रॉस किया। नहीं, आजकल घोड़ा नहीं चलाता गब्बर सिंह। आजकल गब्बर सिंह थोड़ा बड़ा हो गया होगा, उसने कार खरीद ली होगी, तो कार से जैसे ही उतरेगा गब्बर सिंह मॉल में जाएगा, कैमरा उसका फोटो लेगा, पीछे लगा हुआ सॉफ्टवेयर से मैच करेगा और मैच करके सीधे जो अलार्म रहेगा वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा देगा कि गब्बर सिंह जो है टीआई में घूम रहा है, पकड़ लो उसको आके। इनाम भी बच गया, गब्बर सिंह भी मिल गया फटाफट। यही एआई है और यही ऑटोमेशन है। आप सोचो अभी कितने गब्बर सिंह है अपने इंडिया में, राइट? तो कैसे आप लोग कम कर सकते हो? होता है नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो मैं तो जस्ट बातों बातों में आपको इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, बट ये बहुत बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन है। एक एक इम्प्लीमेंटेशन के पीछे आप मनी देखोगे, कितना मनी एसोसिएटेड है, कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। और अगर आप वो कर रहे हैं, और माइंड में कि इस तरह से जो सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं चाहिए होती आपके लिए। जैसे पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो जावा के 50 लोग चाहिए, बैकएंड के 30 लोग चाहिए, देन मिडिलवेयर के 40 चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 चाहिए। टोटल 200 लोगों की टीम होती थी। आजकल नहीं होता, आजकल क्लाउड है, क्लाउड से तो इंफ्रा वाला खत्म हो गए हैं। फ्रंट एंड बैक एंड के लिए 2-2, 3-3 लोग रख लो। मेरी जो टोटल टीम स्ट्रेंथ है वही करीब 20 लोगों की, और वी आर हैंडलिंग अ मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट, राइट? तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, अगर आप ये गब्बर सिंह वाला बोलेंगे तो वो भी मोटा मोटा 5-7-10 लोग, 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सॉफ्टवेयर बन जाएगा, इंक्लूडिंग मार्केटिंग। तो 20 लोगों की सैलरी, प्रोजेक्ट जो है 138,000 करोड़। सोच लो कैसे बटेगा और कितना सैलरी होगा और क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज ये सब हैं इसमें। और आप देख सकते हैं कि इतना वॉल्यूम भी है इंडिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैं बात कर रहा था डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टोटल ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन अगर आप बोलोगे तो एक बड़ी ब्रांच होती है, बड़ा अम्ब्रेला है। उस बड़े अम्ब्रेला के अंदर हमको सब चीज़ों का ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन इज अ बिगर अम्ब्रेला विच इज कॉल्ड एज IT ऑटोमेशन, ठीक है? उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपोनेंट होता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, जिन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा पार्ट होता है मशीन लर्निंग, एंड देन डीप लर्निंग इज समथिंग। अभी ये आप सुनोगे तो सर चकरा जाएगा, डीप लर्निंग क्या है? तो डीप लर्निंग मतलब हम लोग इस एरिया में ह्यूमन ब्रेन जो रहता है, हमारा दिमाग जो रहता है, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब जैसा हमारा दिमाग सोचता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल नर्व्स के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं डीप लर्निंग में।
तो जैसा हमारे दिमाग में अलग अलग न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, परसेप्ट्रॉन्स होते हैं जो आपस में ट्रेवल करते हैं, इधर से उधर इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और बताते हैं कि नहीं आपके घुटने में दर्द है या आपके पैर में चोट लगी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं दिमाग के बीच में और अलग अलग जो वेन्स होती हैं और जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं वो वाले सिग्नल्स को हम लोग ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं डीप लर्निंग के थ्रू, और हो चुका है, कर नहीं रहे, हो गया ये सब। उसके अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंट भी हो गए, इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं, ठीक है। और जो आपने नाम सुना होगा चिट्टी रोबो वगैरह का और बाकी चीज़ों का, ये सब वही है, वहाँ से ही आता है, ठीक है। तो ये सब डीप लर्निंग का कमाल है, उसके अंदर बहुत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सुपर कंप्यूटर, GPU, GRU एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड डेटा साइंस जो है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है। मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम लोग ये सब ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेशन दो तरीके से होता है, एक होता है कंप्यूटर का यूज़ करके, कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करके, और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट यूज़ करके। अगर आप वही ऑटोमेशन स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ करके करोगे तो दैट कम्स अंडर द डेटा साइंस ब्रांच मेजरली, और जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग कहते हैं। और वही काम अगर आप कंप्यूटिंग पावर का यूज करके करोगे तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डीप लर्निंग एल्गोरिदम कहलाता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो जब भी आप जॉब डी भी देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, तो उसमें बोलते हैं कि बंदे को प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग भी आना चाहिए, मशीन लर्निंग भी होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, डीप लर्निंग भी। क्यों इतना बोलने का, डेटा साइंस लिख दो सब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। डेटा साइंस जो है वो थोड़ा अलग चीज़ है, एंड देन उसके अंदर ही अलग अलग ब्रांचेस है, करेक्ट। तो ये आप लोगों को हर बार कंफ्यूजन होता है, कोई बताएगा भी नहीं कि कैसे ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बट उसके अंदर जॉब भी जो रहता है उसमें ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं जो हम लोग देखते हैं। जब मुझे अपनी टीम में रिक्रूटमेंट करना होगा तो ये बारीक बारीक चीजें मैं देखता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि बताओ क्या डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर, और बंदा बोलता है कि सब एक है। जैसे ही वो बोलता है मैं बोलता हूँ कि ठीक है, हो गया काम, आपको नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विथ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन जो काम करता है, लाइक बैंक मैनेजर है, अभी बैंक मैनेजर लोन अप्रूव करता है, बैंक मैनेजर लोन अप्रूव करता है तो वो ह्यूमन काम कर रहा है अपना। उसके अंदर बैंक मैनेजर का मूड अच्छा है वो काम करेगा, बैंक मैनेजर एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसको हम लोग अगर वही वाला इंटेलिजेंस कंप्यूटर से रिप्लेस कर देंगे तो बैंक मैनेजर की नौकरी गई, बट एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की नौकरी आ भी गई, और साथ में हम लोग प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं, लोन भी बराबर से दे पा रहे हैं, करप्शन भी हट गया है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ गिव अवे, टेक एंड गिव, ट्रेड ऑफ, सॉरी, है ना। ऐसे मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ एआई वेयर ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न रिकॉग्निशन इज डन बाय एक्सपोजिंग कंप्यूटर ओवर ह्यूज डेटा रादर देन द प्रोग्रामिंग कोडिंग ऑन। तो यहाँ पे वही है कि हम इसके अंदर एआई का ही एक ब्रांच है, बट इसके अंदर बहुत सारा जो डेटा होता है, अभी बहुत डेटा का मतलब क्या होता है? किसी ने सुना ह्यूज डेटा का क्या मतलब है? एनीबॉडी वुड लाइक टू डिफाइन द ह्यूज डेटा? ह्यूज डेटा क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? नहीं क्या? कहीं किसी ने नाम नहीं सुना बिग डेटा का? नहीं सुना? सुना है, सुना है बस, बट पता नहीं कि क्या होता है। हडूप है, स्पार्क है, किसी ने पाइस्पार्क सुना है? सर जो लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट होता है उसको बिग डेटा कहते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट कितना? वेराइटी, वेलोसिटी सब हाँ, उसके वीज हैं। 5V हाँ ठीक है, 5V है, बट अगेन थोड़ा सा इमेजिन करो कि क्यों हम लोग बिग डेटा अभी करने लग गए, अभी को करने लग गए। भाई ये तो हम लोगों ने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तब तो हमको बताया नहीं, अभी बताना शुरू किया है, ऐसा भी कुछ होता है। ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई कॉलेज की, कि भाई हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो हमको नहीं पढ़ाया, अभी से नई चीज पढ़ के आ गए, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते। तो ये पढ़ने का था क्या कि उन लोगों को पता नहीं था या R&D नहीं हो रही थी उस टाइम पे? ऐसा कुछ था क्या? ये अभी कुछ हुआ है ऐसा? सर अभी ज्यादा मेल्स और गूगल और बाकी सब जगह से जनरेट हो रहा है डेटा, पहले इतना नहीं होता था। तो अभी ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, कि भाई जाओ तथास्तु एंड नाउ यू कैन यूज बिग डेटा नाउअडेज? पहले उनको ऐसा था कि कर्ज दे रखा था, श्राप दे रखा था कि नहीं तुम बिग डेटा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था क्या? कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, कुछ तो चेंज हुआ होगा। इतना डिजिटलाइज नहीं था ना सर। हाँ, तो क्यों नहीं था ना, कुछ तो कारण होगा ना। क्या अपने पास ब्रेन की कमी थी इंडिया में?
इंडिया में क्या सुंदर पिचाई अभी 2 साल का बच्चा है क्या जो अभी अभी आया है दुनिया में? पहले नहीं था क्या वो? इनकी कमी नहीं थी सर, मार्केट में पैसा सॉफ्टवेयर नहीं और था? इन चीजें की पैसा डिमांड थी, पर ट्रस्ट नहीं था उतना उस टाइम सर पे। इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी कम थी पहले लोगों यस सर, जियो के आने के बाद से ज्यादा बढ़ गया है सब कुछ। ये तो कॉमेडी हो गया। आपको नहीं क्या खरीदना। आपको क्या लगता है कि सुंदर पिचाई जियो का मोबाइल से टीथरिंग लेके कोडिंग कर रहा सर होगा? सुंदर पिचाई ने बाहर से की अपनी एजुकेशन सर। अच्छा, तो उसने वहीं पे रख ली अपने पास में, अपने को नहीं बताई, ऐसा है क्या सुंदर पिचाई? ऐसा नहीं है सर। पहले सर अपन कुछ करते नहीं थे सर गूगल पे। अब क्या है, गूगल पे अपन खुद ही सब चीज डालते हैं सर, और गूगल अच्छा। खुद अपना डाटा एनालिसिस करता है सर। अपने हर चीज के लिए अपन गूगल की लोकेशन फलाना जो भी आता है लो कर देते हैं सर। पहले इतना नहीं था सर, पहले मार्केट हर एक इंसान के पास पहले इतना बड़ा फोन भी नहीं था सर। हाँ। धीरे धीरे वो चीजें जैसे बढ़ती गई सर, बिग डेटा सर अपने से ही अपने अपना ही लिया अपने को ही दिखा रहा है सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अपना लिया अपने को दिखा रहा है। बट ये चीटिंग क्यों कर रहा है गूगल हमारे साथ? ऐसा क्यों कर रहा है? धोखा कर रहा है गूगल? गूगल ऐसा धोखा नहीं कर रहा है सर। पहले क्या गूगल का इतना मेन बात ये है सर, पहले लोग इतना यूजेज नहीं थे। अब क्या कुछ भी चीज हो गई डायरेक्ट गूगल करते हैं लोग सर। हाँ, वो तो सही बात बोली आपने। मतलब लोग आजकल ज्यादा एजुकेटेड हो गए, अपन ये बोलना Yes, चाह रहे हैं। sir. पहले उनको इतना नॉलेज नहीं होता था, गूगल क्या होता है उनको पता भी नहीं था। गूगल चलाना ही नहीं आता था पहले आजकल लोगों सर को। जो बच्चा पढ़ा हुआ नहीं, मतलब जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, वो भी सीधा गूगल करता है, गूगल से पूछता है हेलो गूगल ये चीज क्या है। अरे यार, ये तो कमाल हो गया। मतलब हाँ, आप ये बोल रहे हो कि बिना पढ़ा लिखा भी गूगल कर पा रहा है अभी? सर मैं गांव से हूँ सर, मुझे पता है ना सर। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही, गलत कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो मतलब पहले क्या था वो? पहले भी तो पहले अगर सर चलो मान लोगों के लो। पास इतने फोन भी नहीं थे, और पहले लोगों के पास मतलब सर ये गूगल इतना डेवलप भी नहीं था पहले उस टाइम पे। सर थिंकिंग नहीं थी पहले इसलिए। थिंकिंग नहीं थी, चलो ठीक है। पहले यूट्यूब चैनल नहीं होते थे तो बेसिकली पहले रिसोर्सेज तो थे पर लोग इतने अवेयर नहीं थे उस चीज के बारे में। क्यों पहले लोग टिकटॉक वीडियो नहीं बनाते थे क्या? भाई गूगल भी क्या कर रहा होगा, किसी ना किसी का टिकटॉक वीडियो देख रहा होगा, उसी से एनालिसिस कर रहा होगा। कुछ तो है यार, ऐसा कुछ चेंज तो हुआ है 2-4 सालों में। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमको पता नहीं है, या हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। पता तो है सर इंटरनेट सस्ता हो गया। अरे वो तो मुकेश अंबानी जी की कृपा है, इसलिए सस्ता हो गया आपके लिए। पर पहले भी इंटरनेट सस्ता ही था, आपको बताएं क्या? वो तो ये है कि मोबाइल इंटरनेट सस्ता हो गया। आप थोड़ा स्पेसिफिक बोलोगे तो फिर भी हम लोग मान लेंगे। बट इंटरनेट पहले भी इतना ही सस्ता था, ज़्यादा महंगा नहीं था। बट मोबाइल इंटरनेट महंगा था। खैर एनीवेज, इंटरनेट इसका इतना बड़ा रीज़न नहीं है जितना एक और बड़ा रीज़न है। किसी ने नाम सुना है फ्लॉपी ड्राइव का? ऐसी कुछ दिखती थी। हाँ सर। यस सर, यस ये ये हमारे ज़माने की चीज़ है। जब मैं स्टूडेंट होता था, मैं अपने पास फ्लॉपी ड्राइव रखता था। बट आपको पता है कि उसकी स्टोरेज कितनी होती थी? सर एमबी में होती थी सर। सर केबी और एमबी में होती थी। कितना एमबी? 1.44 एमबी। आई थिंक 2.6 या कुछ है। मेरे बहुत समय हो गया यूज किए हुए, आजकल तो आता नहीं है। बट आई थिंक 2.6 MB ऐसा कुछ रहा होगा। आई मीन जस्ट इग्नोर दिस डेटा, बट एमबीज में होता था, और जस्ट 1 या 2 MB के आसपास ही कुछ होता था, बहुत कम होता था। अभी इसमें बताओ कि मुझे अगर सलमान खान की मूवी डाउनलोड करनी है तो कर पाऊंगा क्या मैं? नहीं ना? नो सर। नो सर, नो सर। No, sir. जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ, तो यही ना कि अभी अपने पास पहले इतना डेटा ही नहीं था। अभी क्या करोगे? पहले डेटा नहीं था, मतलब क्या कि पहले अगर आपको डेटा स्टोर करना है या ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए चलाने के लिए आपके पास डेटा ही नहीं था। अगर डेटा नहीं था तो फिर क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको कुछ ना कुछ डिवाइसेस चाहिएंगे उसके लिए। आजकल फ्लॉपी ड्राइव यूज़ नहीं होती, बट आजकल पेन ड्राइव यूज़ होती है। और पेन ड्राइव कितने की होती है? मे बी 1 TB तक की होती है, नहीं होती है? यस सर। तो ये ट्रांजिशन देखा आपने? पहले जो फ्लॉपी ड्राइव थी वो आई थिंक 15-20 रुपए की आती थी। मुझे याद है कि मैंने अपना जो पेन ड्राइव खरीदा था फर्स्ट वाला, वो करीब 1500 रुपए का खरीदा था, एंड दैट वाज 256 MB। और अभी आप देखोगे तो ये 1 TB का हो गया है। 1 TB का भी मोटा मोटा इतने में ही आ जाता है। तो ये डिफरेंस है कि डेटा सस्ता हो गया है, डेटा स्टोर करना सस्ता हो गया। डेटा सस्ता नहीं हुआ, डेटा स्टोर करना सस्ता हो गया है। करेक्ट? तो ये अपने पास हो चुका है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह से आप बोलोगे तो डेटा स्टोरेज सस्ता हो गया है। देन मोबाइल स्पीड, इंटरनेट स्पीड तेज हो गई है। पहले जो होती थी वो 256 Mbps या 1 Kbps या 1 GB पर सेकेंड और जो भी होती थी पहले,
अभी जो हो गई है वो काफ़ी सारी तेज हो गई है, 5G हो गया एंड देन उसके ऊपर भी आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज वी आई कुड हैव टॉक इट अबाउट डेज एंड मंथ्स। तो ये एक हमारे पास अभी चल रहा है, इसीलिए इतना तेजी से रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ है। नाउ ये तो डेफिनेशंस है, क्विकली इसका एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कहाँ यूज़ होता है? पहला तो स्पैम वर्सेस हैम क्लासिफिकेशन, आपने सुना है क्या होता है? वो गूगल के अंदर ही होता है कि आपके पास कोई मेल आया है, वो लेजिट मेल है या फिर स्पैम है। ऐसे दो फोल्डर होता है, स्पैम मतलब प्रमोशन वाला ईमेल है, उसके अंदर लिखा है 50% ऑफ, जैसे वो 50% ऑफ गूगल देखेगा ना, उसको उठा के सीधे वो स्पैम में धकेल देता है। तो ये क्लासिफिकेशन गूगल करता, हम नहीं करते। पहले हम करा करते थे कि हमारे गूगल में मेल आया, अरे यार ये तो प्रमोशन वाला है, ये कोई पब्लिसिटी कर रहा है, ये जो है मूवी टिकट बेच रहा है, ये जो है कुछ अजीब सा ईमेल है और ये समथिंग, अच्छा हाँ ये जो है ये काम का मेल है, तो इस मेल को हमको अपने को इनबॉक्स में रखना है और बाकी सबको जो रहेगा इन सबको हमको स्पैम में धकेलना है या फिर डिलीट करना है। तो ये जो था ये पहले हम लोग खुद करा करते थे, बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आने के बाद ये जो रहता है एमएल एल्गोरिदम खुद कर लेता है, राइट। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है मशीन लर्निंग का। ऐसे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो एक काम करते हैं हम लोग, कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, करेक्ट। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन एंड गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली, और उसके बाद फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं और इस सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है।